لاہور کے باسیوں کو خوشی ملی وہ بھی ادھوری، لیسکو نے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دی مگر 1 گھنٹے کے بعد 1 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا شیڈیول جاری کر دیا۔ شہر میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف مظاہرے جاری، چونکہ امر صدو کے رہائشیوں کا احتجاج رنگ لے آیا۔ 5 روز بعد لیسکو حکام نے ٹرانسفارمر نصب کر کے بجلی بحال کر دی۔ ادھر سمن آباد سردان اسٹریٹ میں بجلی کی بندش کے باعث شادی کی تیاریاں درہم بھرم۔ بجلی کی بندش نے شہریوں کو بے صبرا کر دیا۔ بجلی ٹھیک نہ کرنے پر صارفین نے لائن مین طارق جاوید کی پٹائی کر دی، 4 افراد زیر حراست۔ ادھر صارفین کے غضب بچنے کے لیے لیسکو تنصیبات کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی بڑھا دی گئی۔ کروڑوں روپے کے بل واجب الادا ہونے پر لیسکو نے واسا کے 8 ٹیوب ویلز، ٹی ایم او سمن آباد آفس اور ٹریننگ انسٹیٹیوٹ، پولیس، جیل سمیت متعدد کنیکشنز کاٹ دیے۔ ایم ڈی واسا کا کہنا ہے کہ لیسکو کو 16 کروڑ روپے کے واجبات کی ادائیگی کے باوجود کنیکشن کاٹے گئے۔ سڑکوں پر چلتے پھرتے بموں کو ناکارہ کون بنائے گا؟ لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی کی غفلت، مسافر ویگنز میں نصب ناقص سلنڈر، حادثات کو دعوت دینے لگے۔ اسسٹنٹ کمشنر ماڈل ٹاؤن نے گلبرگ میں آلیو ول کیفے کو سربمہر کر دیا۔ کیفے سے حقے درجنوں فلیورز برآمد، مالک کے خلاف مقدمہ درج۔ خطرے نے ایک اور جان لے لی، گنگارام اسپتال میں 6 سالہ عدیل دم توڑ گیا۔ شہر میں ہلاکتوں کی تعداد 64 ہو گئی۔ سرکاری اور نجی اسپتالوں میں 85 نئے کیسز کی تشخیص۔ ماڈل ٹاؤن کچہری کے وکلاء کا کلائنٹ سے رشوت لینے پر تھانہ کاہنہ کے تفتیشی آفیسر پر تشدد۔ ادھر نصیر آباد پولیس نے اے ایس آئی نعیم رضا پر تشدد کرنے والے 7 وکلاء کے خلاف مقدمہ درج کر دیا۔ ایل پی جی کی قیمت میں اضافے کا سلسلہ جاری، قیمت میں 5 روپے مزید اضافہ۔ شاہد خان کو چیف سیکرٹری اور خان بیگ کو آئی جی پولیس کا اضافی چارج دیے جانے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ ادھر ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ذوالفقار حمید نے سی سی پی او کا اضافی چارج سنبھال لیا۔ ایل ڈی اے پلازا کی آرسی سدگی سے متاثرہ منزلوں کو گرانے کے لیے حکمت عملی پر غور۔ چیف انجینئر اسرار سعید کے مطابق مسماری کے لیے آسان اور کم خرچ طریقہ اپنایا جائے گا۔ بحریہ ٹاؤن انتظامیہ کی جانب سے سانحہ ایل ڈی اے پلازا میں جاں بحق افراد کے لواحقین میں 5-5 لاکھ روپے کے امدادی چیک تقسیم کرنے کی تقریب۔ بحریہ ٹاؤن کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر انبر شہزاد کی شرکت۔ جعلسازی کیس میں اسپیشل جج اینٹی کرپشن غفار جلیل نے ایلیگیشن کے 3 افسران ایکس ٹی این محمد افضل، سب انجینئر خالد اقبال اور ایس ڈی او نوازش علی کی ضمانتیں خارج کر دی۔ پی آئی اے کی پرواز 710 کی 13 گھنٹے تاخیر سے مانچسٹر سے لاہور آمد۔ مسافروں نے پی آئی اے کے خلاف شکایات کے اموات لگا دیے۔ انتخابات میں مسلم لیگ نون کی کامیابی کے بعد پارٹی میں اراکین اسمبلی کی شمولیت اور میاں نواز شریف کو مبارکباد دینے والوں کی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری۔ زمان 5 میں تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان زیر صدارت پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس۔ ادھر پی سی ہوٹل میں عبدالعلیم خان کی جانب سے نومنتخب اراکین اسمبلی کے اعزاز میں عشائیہ۔ مسلم لیگ کاف نے انتخابات پر تمام سیاسی جماعتوں کے تحفظات دور کرنے کے لیے قومی کمیشن قائم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کاف لیگ کے صدر چودھری شجاعت حسین کا کہنا ہے کہ کمیشن 30 دن میں اپنا کام مکمل کرے۔ نگران وزیر اعلیٰ نجم سیٹھی کا افریقی سفیروں کے ہمراہ ایوان صنعت و تجارت کا دورہ۔ افریقی ممالک کی مصنوعات کی نمائش کا افتتاح کیا۔ مسلم لیگ نون کے نومنتخب اراکین اسمبلی پرویز ملک، وحید عالم خان، میاں مصطفیٰ شجاع الرحمان اور چودھری شہباز احمد کے اعزاز میں مصری شاہ میں لیگی کارکنان کا استقبالیہ۔ ڈاکٹر سہیل نقوی لمز کے نئے وائس چانسلر مقرر، 1 جولائی کو اپنے عہدے کا چارج سنبھالیں گے۔ انسٹیٹیوٹ آف بزنس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی پنجاب یونیورسٹی کے زیر اہتمام سالانہ جاب فیئر۔ ادھر علامہ اقبال میڈیکل کالج میں الائیڈ ہیلتھ سائنسز ڈپارٹمنٹ کا افتتاح کر دیا گیا۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں 45ویں مینز جمناسٹک چیمپئن شپ کا آغاز۔ پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، وافدہ، آرمی اور پولیس کی ٹیموں کی شرکت۔ اور شہر میں گرمی کی شدت برقرار، درجہ حرارت 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ گرمی سے ستائے شہری دن بھر نہر کے ٹھنڈے پانی سے لطف اٹھاتے رہے۔
हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में बात करते हैं। लेस्को ने शहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। शहर में 1 घंटे के बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग करने का शेड्यूल जारी कर दिया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को मोहम्मद सलीम के मुताबिक बिजली की पैदावार में इजाफे की वजह से शहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करने का ऐलान किया गया है। उन्होंने बताया कि लेस्को के कोटे को बढ़ाकर 240 मेगावाट कर दिया गया है, जिसकी वजह से शेड्यूल जारी किया गया है। लेस्को चीफ के मुताबिक अब शहर में 1 घंटे के बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग की जाएगी ताकि सारिफिन को मुश्किल ना हो। वाज़ेह रहे कि इससे कबल शहर में 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही थी। लिबर्टी चौक में मुख्तलिफ तबकों और शोबाहाए जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शहर में होने वाली गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। लिबर्टी चौक में होने वाले एहतजाजी मुजाहरे में मुख्तलिफ तालीमी इदारों में ज़ेर तालीम तलबा समेत दूसरे इदारों से मुंसलिक लोग भी शामिल थे। इस मौका पर मुजाहिरीन का कहना था कि हुक्मरान तबका और एलीट क्लास के पास तो ऐसे वसाइल मौजूद हैं कि उनका लोड शेडिंग में भी गुजर बसर हो जाता है, मगर गरीब तबका जो इस गैर एलानिया लोड शेडिंग में 20-20 घंटे अजियत झेलते हैं, उनका पुरसाने हाल कौन है। उनका ये भी कहना था कि अगर ज़िले गवर्नमेंट शहर में रात गए खुलने वाले शॉपिंग मॉल्स को जल्द बंद करने का हुक्म दे तो आवाम को रात के वक्त किसी हद तक रिलीफ मिल सकता है। चूंकि अमर सिद्धू के रिहायशियों का एहतजाज रंग ले आया, लेस्को हुकाम ने 5 रोज़ा मुसलसल बंदिश के बाद ट्रांसफार्मर नस्ब करके बिजली की फराहमी शुरू कर दी है। हमजा टाउन सब डिवीजन हुकाम की गफलत के बायस करीम पार्क बैंक स्टॉप के रिहायशी 5 रोज से बिजली से महरूम थे। हुकाम से बार बार राब्ता करने के बावजूद जब कोई काम ना बना तो अहले इलाका एहतजाज पर उतर आए और फिरोजपुर रोड को ब्लॉक कर दिया। एहतजाज के बाद लेस्को हुकाम ने अपनी जिम्मेदारी को कबूल करते हुए ट्रांसफार्मर नस्ब करके बिजली की फराहमी बहाल कर दी है। शहर में जारी बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग ने जहां जिंदगी के दीगर मामूलात जिंदगी को बुरी तरह मुतासिर किया है, वहीं बिजली की मुसलसल बंदिश ने सामनाबाद की रिहायशी खातून की शादी की खुशियों को भी किरकिरा कर दिया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बिजली की मुसलसल लोड शेडिंग ने खुशियों के रंगों को फीका कर दिया। शहर भर की तरह समनाबाद सरदार स्ट्रीट में भी तवील लोड शेडिंग की वजह से मकीनों की जिंदगी अजीरन होकर रह गई है। सरदार स्ट्रीट के रिहायशी राना एहसान की बेटी की शादी की तैयारियां बिजली की तवील बंदिश के बायस बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। दुल्हन के अहले खाना के मुताबिक उनकी बेटी की बारात आ रही है, जबकि बिजली और पानी की अदम दस्तयाबी के बायस वो शदीद ज़हनी कोफ्त का शिकार हैं। दुल्हन के वालिद का कहना था कि लेस्को हुकाम ट्रांसफार्मर में होने वाली खराबी को बार बार की दरखास्तों के बावजूद दूर नहीं कर रहे। गर्मी में देखें, मैं टेंशन नहीं लूँगा तो कैसे नहीं लूँगा, जबकि मेरी बेटी क्या सोचेगी, मेहमान सारे हैं, वो क्या सोचेगी कि मेरी शादी के दिन ये वापदा वालों ने क्या किया। दुल्हन की वालदा भी लोड शेडिंग के बायस ज़हनी इस्तराब का शिकार हैं। पानी के बगैर मिनट के बाद पानी मांगते हैं, कहाँ से लाएं? पानी के लिए बर्तन भी पड़े हुए हैं, खाना पड़ा हुआ है। इससे बढ़ के ये है कि हम नाश्ते के लिए बैठे हुए हैं। ये शादी वाला घर है, शादी वाले घरों में तो 100 डिश इंसान तैयार कर लेता है, ये हम लोग नहीं कर सकते। सिर्फ समनाबाद के रिहायशी ही नहीं बल्कि पूरे शहर के मकीन हुकूमत बनने के बाद लोड शेडिंग जैसे संगीन मसले के सद्देबाब की आस लगाए बैठे हैं। शदीद गर्मी और लोड शेडिंग से सताए शहरियों के नहर पर डेरे ख्वांचा फरोशों की चांदी हो गई। इस हवाले से देखते हैं रेहान गुल की ये रिपोर्ट। मई की जुलसा देने वाली गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग पर गुज़िश्ता कई रोज से लाहौरी अपने अहले खाना के हमरा गाहे बगाहे नहर का रुख करने पर मजबूर हैं। बूढ़ों, बच्चों, नौजवानों और खवातीन की बड़ी तादाद हमा वक्त नहर के ठंडे पानी से लुत्फ अंदोज होती, जबकि मंजिलें मुख्तलिफ खतरनाक करतब दिखाते नजर आते हैं। नहर के ठंडे पानी में मौज मस्ती करने वालों का कहना है कि गर्मी और हबस के बायस घर की 4 दीवारी में रहना मुहाल हो चुका है। लाइट आ नहीं रही, ऐसे आए गरीबा से यही तरह एसी है, तरह कुछ घर में पानी भी नहीं आ रहा, ना तो लाइट आ रही है, 4-4 घंटे लाइट जाती है, तो इसलिए हम नहर पे आ जाते हैं बच्चों को लेके। गर्मी है। नहर पर गैर मामूली रश के बायस ख्वांचा फरोशों की भी खूब चांदी हो गई है। ठेले वालों का कहना है कि नहर पर रश के बायस इनकी भी खूब बिक्री हो रही है। शहर में पानी की शदीद किल्लत के बायस लोग रिक्शे और मोटरसाइकिलें भी नहर पर धोते नजर आते हैं। लोगों का कहना है कि इन्हें नई हुकूमत से बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं कि वो लोड शेडिंग के इस अजाब से आवाम की जान छुड़ाएगी। बिजली की लोड शेडिंग काफी ज्यादा है। अब देखें नई गवर्नमेंट आएगी, इनसे हमारी क्या उम्मीदें हैं, क्या करती हैं। टाइम तो इन्होंने दिया है, देखते हैं हम करते हैं कि नहीं करते। शदीद गर्मी और इस पर बदतरीन लोड शेडिंग ने आवाम का बरकस निकाल दिया है। ऐसे में नहर का ठंडा पानी किसी नेमत से कम नहीं। कैमरामैन वाजिद अली के साथ रेहान गुल, सिटी 42।
ایک طرف تو قیامت خیز گرمی میں گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ نے صوبائی دارالحکومت کے شہریوں کی نیندیں حرام کر دی ہیں، تو دوسری جانب اسی شہر میں ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ایسی بھی ہے جہاں کے مکین لوڈ شیڈنگ کے تصور سے بھی ناشنا ہے۔ دیکھتے ہیں شہزاد خان عبدالی کی یہ رپورٹ۔ شہر میں لوڈ شیڈنگ کا جنگ بوتل سے باہر آ چکا ہے۔ لوڈ شیڈنگ کے طویل دورانیے نے شہریوں کے دن کا سکون اور رات کی نیند چھین لی ہے، لیکن لیک سٹی سوسائٹی کے مکین ان حالات میں بجلی کی مسلسل فراہمی سے مستفید ہو رہے ہیں۔ بین الاقوامی معیار اور جدید سہولیات سے مزین لیک سٹی سوسائٹی کے مکینوں کو بجلی کی بلا تعطل فراہمی کے لیے انتظامیہ کی جانب سے سیلف پاور جنریشن پلانٹ لگایا گیا ہے اور مکینوں کو وابڈا ٹیرف پر 24 گھنٹے بجلی فراہم کی جا رہی ہے۔ ہم لوگوں نے 2 میگا واٹس کا کیپٹیو پاور کا بندوبست کیا ہے اور ادھر جال بچھایا ہے جنریٹرز کا، جس سے ہم کنٹینیوس پاور اپنے ریزیڈنٹس کو سپلائی کر رہے ہیں۔ اعلیٰ طرز تعمیر اور لگژری لائف سٹائل کی حامل لیک سٹی سوسائٹی کے مکینوں کا کہنا ہے کہ ملک میں لوڈ شیڈنگ نے عوام کا جینا دو بھر کر دیا ہے، لیکن لیک سٹی سوسائٹی میں رہتے ہوئے وہ لوڈ شیڈنگ کے لفظ سے ناآشنا ہیں۔ جیسی لائٹ جاتی ہے جنریٹر آن ہو جاتا ہے اور ہمیں کوئی کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے، نہ واشنگ کا پرابلم ہے، نہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اب لائٹ آئے گی تو ہم نے کپڑے استری کرنے ہیں۔ ڈریم کم ٹرو کہ ہم لیک سٹی آئے تھے اور ایک میری بہت فارموسٹ ڈیزائر تھی کہ ہمیں جو ہے انٹرپٹیڈ الیکٹریسٹی سپلائی ملے، اور گوہر انکل نے میری یہ ڈیزائر فلفل کی ہے، سو آئی ایم ویری تھینکفل ٹو ہیم۔ یہاں لائٹ جانے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ اپنی جتنی مرضی الیکٹرانکس چارج کرنا چاہو کر لو، اس لیے میں تو کہوں گا لیک سٹی رہنے کی بیسٹ پلیس ہے، اٹس لائک اے پیراڈائز۔ ہمیں 24 آورس جو ہے ان انٹرپٹیڈ پاور سپلائی مل رہی ہے، ایٹ لیسٹ رات کو آپ بالکل پرسکون سو گئے ہیں۔ لیک سٹی سوسائٹی انتظامیہ نے انڈیپینڈنٹ پاور جنریشن پلانٹ کے ذریعے 24 گھنٹے بجلی کی بلا تعطل فراہمی سے مکینوں کی زندگی میں حقیقی خوشیوں کے رنگ بھر دیے ہیں اور یہاں ہر طرف زندگی ہنستی مسکراتی نظر آتی ہے۔ جہاں سارا شہر قیامت خیز گرمی اور لوڈ شیڈنگ کے باعث سخت اذیت سے دوچار ہے، تو وہیں جنرل نذیر لیک سٹی سوسائٹی کے مکین لوڈ شیڈنگ فری ماحول میں اپنی زندگی کے پرکیف لمحات گزار رہے ہیں اور یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ انہیں ان کے خوابوں کی تعبیر مل گئی۔ کیمرامین امتیاز شاہ کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ سٹی 42 میں خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ ابھی جاری ہے، لیکن یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، دیکھتے رہیے سٹی 42۔ سٹی ڈویژن پولیس نے لوڈ شیئرنگ کے خلاف ہونے والے مظاہروں کے دوران لیسکو تنصیبات کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی بڑھا دی ہے۔ بدترین لوڈ شیڈنگ کے باعث شہر میں شہری سراپا احتجاج ہیں۔ مظاہرین غصہ نکالنے کے لیے بعض اوقات لیسکو دفاتر پر دھاوا بول کر توڑ پھوڑ کرتے ہیں، جس سے لیسکو املاک کو بھاری نقصان پہنچتا ہے۔ ایس پی سٹی ندیم شہزاد بخاری نے مظاہروں کے پیش نظر سٹی ڈویژن میں واقع تمام گریڈ اسٹیشنز کی سیکیورٹی بڑھا دی ہے۔ تمام ایس ایچ اوز کو ہدایت کی گئی ہے کہ گریڈ اسٹیشنز کی سیکیورٹی کا خود جائزہ لیں اور کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے انتظامیہ سے رابطے میں رہیں۔ لیسکو بھاٹی گیٹ سب ڈویژن میں تعینات لائن مین کو صارفین نے تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ پولیس نے 4 ملزمان کو حراست میں لے کر مقدمہ درج کر لیا ہے۔ لیسکو بھاٹی گیٹ سب ڈویژن میں تعینات لائن مین طارق جاوید کے مطابق 4 صارفین ان سے بجلی کو ٹھیک کرنے کی شکایت لے کر آئے، جس پر انہیں تھوڑی دیر بعد کام کرنے کی درخواست کر دی گئی اور وہ سیخ پا ہو گئے۔ لائن مین کے مطابق 4 ملزمان نے اسے تشدد کا نشانہ بنایا، جس کے بعد طارق جاوید کا میڈیکل کروایا گیا۔ لیسکو اہلکاروں کے مطابق ملزمان کو پولیس نے حراست میں لے کر مقدمہ درج کر لیا ہے۔ لیسکو سول لائن ڈویژن نے کروڑوں روپے کے بل واجب الادا ہونے کی وجہ سے واسا کے 8 ٹیوب ویلز، ٹی ایم او سمن آباد آفس اور ٹریننگ انسٹیٹیوٹ پولیس ٹی ایل سمیت متعدد کنیکشنز کاٹ لیے ہیں۔ ایکسین سول لائن ڈویژن کی ہدایت پر لیسکو جی او آر سب ڈویژن اور اسلامیہ پارک سب ڈویژن میں متعدد سرکاری محکموں کے کنیکشن منقطع کر دیے گئے۔ لیسکو حکام کے مطابق بلوں کی عدم ادائیگی کی وجہ سے واسا کے سلیمان سٹریٹ ٹیوب ویل، ایل او ایس اسلم خان روڈ، جہانگیر پارک، سادی پارک، لاہور کالج فار ویمن، زمان پارک اور اسکاچ کارنر اپر مال کے ٹیوب ویلز کی بجلی کاٹ دی گئی ہے۔ دوسری جانب ٹی ایم او سمن آباد آفس، ٹریننگ انسٹیٹیوٹ پولیس ٹیل، اشٹا فلیٹ اسٹریٹ لائٹس، سادی پارک، چوبرجی پارک، ظفر علی روڈ، گلبرگ 5 اور اپر مال کی اسٹریٹ لائٹس کی بجلی منقطع کر دی گئی ہے۔ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی حکام نے ایل ڈی اے پلازا ایجرٹن روڈ کی آتش زدگی سے متاثرہ منزلوں کو گرانے کے لیے حکمت عملی ترتیب دینا شروع کر دی ہے۔ چیف انجینئر اسرار سعید کا کہنا ہے کہ پلازے کی مسماری کے لیے آسان اور کم خرچ طریقہ اپنایا جائے گا۔
9 मई को आतिशज़दगी से मुतासर होने वाले LDA प्लाजा की 7वीं, 8वीं और 9वीं मंजिल को मिसमार करने की सिफारिश स्ट्रक्चर असेसमेंट कमेटी की जानिब से की जा चुकी है, जबकि LDA की गवर्निंग बॉडी में मुतासरा मंजिलों को गिराने की मंजूरी दे चुकी है। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी हुक्काम ने LDA प्लाजा एजर्टन रोड को आतिशज़दगी से मुतासरा मंजिलों को गिराने के लिए मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर शुरू कर दिया है। मुख्तलिफ ऑप्शंस में से 2 ऑप्शंस को सरे फहरिस्त रखा जा रहा है, जिनमें पहली ऑप्शन प्लाजे के मुख्तलिफ मुतासरा हिस्सों को मिसमार करके ट्रेन के जरिए नीचे उतारा जाए, जबकि दूसरी ऑप्शन के मुताबिक तीनों मुतासरा मंजिलों को मिसमार करके मलबा समेटा जाए। चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद के मुताबिक प्लाजे की मुतासरा मंजिलों की मिसमारी के लिए आसान और कम खर्च तरीका अपनाया जाएगा, जबकि इस बात का भी खुसूसी तौर पर ख्याल रखा जाएगा कि कम से कम वक्त में मिसमारी मुकम्मल की जाए और बाकी इमारत को किसी किस्म का नुकसान न पहुंचे। इसरार सईद का कहना है कि मिसमारी के लिए निजी ठेकेदारों और फर्मों से कोटेशन तलब की जा रही हैं, जबकि 28 मई से माहिरीन की ज़ेर निगरानी मिसमारी का काम शुरू कर दिया जाएगा। 10 मई को सानेहा LDA प्लाजा में जाम बहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन में बहरिया टाउन इंतजामिया की जानिब से इमदादी रकूम के चेक तकसीम किए गए। ग्रैंड होटल बहरिया टाउन में होने वाली तकरीब में बहरिया टाउन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अंबर शहजाद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। अंबर शहजाद ने मुतासरा खानदानों से हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा कि बहरिया टाउन इंतजामिया उनके गम में बराबर की शरीक है और इस गम को बांटने के लिए उनकी जानिब से ये एक मुख्तसर सी काविश है। उन्होंने बहरिया टाउन की जानिब से जारी फलाही कामों पर भी रोशनी डाली। तकरीब के इख्तिताम पर सानिया LDA प्लाजा में जाँ बहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन में 5-5 लाख रुपए के चेक तकसीम किए गए। सड़कों पर चलते फिरते बमों को नाकारा कौन बनाएगा? लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी की गफलत के बायस मुसाफिर वैगनों में नस्ब नाकिस गैस सिलेंडर हादसात को दावत देने लगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सिलेंडर फटने के वाकयात से होने वाले नुकसानात के बावजूद शहर के बेशतर रूट्स पर चलने वाली मुसाफिर वैगन्स के ड्राइवर्स ने मुनाफे के चक्कर में घरेलू इस्तेमाल वाले LPG सिलेंडर का इस्तेमाल मामूल बना लिया है। बेशतर ड्राइवर्स LPG पर गाड़ियां चलाते हैं, जबकि गैस खत्म होने की सूरत में मुतबादल की सूरत में पेट्रोल के गैलन भी गाड़ी में रखे जाते हैं, जो किसी भी वक्त आतिशज़दगी का बाइस बन सकते हैं। मुसाफिरों का कहना है कि किराया नामा तो डीजल और पेट्रोल की कीमतों के मुताबिक बताया जाता है, जबकि मुनाफे की लालच में वैगन्स के ड्राइवर्स नाकिस गैस सिलेंडर्स इस्तेमाल करके मुसाफिरों की जानों को खतरे में डालते हैं। मुसाफिरों ने मुतालबा किया है कि लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी नाकिस सिलेंडर इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई करे। खसरे के बाइस हलाकतों का सिलसिला जारी। मर्ज का शिकार 6 साला अदील गंगाराम अस्पताल में दम तोड़ गया। हलाकतों की मजमूई तादाद 64 हो गई है। शहर में खसरे का खतरा बदस्तूर मौजूद है और तमाम तर हुकूमती दावों के बावजूद मूजी मर्ज ने एक और जान निकल ली। गंगाराम अस्पताल में 6 साला अदील खसरे के बाइस दम तोड़ गया। खसरे से अब तक 7000 बच्चे मुतासर हो चुके हैं, जबकि शहर में मर्ज की वजह से हलाकतों की तादाद 64 हो गई है। दूसरी जानिब मुख्तलिफ सरकारी और निजी अस्पतालों में खसरे के मजीद 85 नए केसेस भी सामने आए हैं। शहर का दर्जा हरारत बढ़ने के साथ साथ महंगाई भी बढ़ने लगी है। मकामी मार्केट में LPG की कीमत भी 5 रुपए इजाफे के साथ 115 रुपए फी किलो हो गई है। शहर में CNG गायब होने के साथ ही LPG की कीमत में भी इजाफे का सिलसिला शुरू हो गया है। मकामी मार्केट में LPG की कीमत में मजीद 5 रुपए इजाफा देखने में आया, जिससे LPG की कीमत 115 रुपए तक जा पहुंची है। गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान LPG की कीमत में मजमूई तौर पर 15 रुपए फी किलोग्राम इजाफा हुआ, जिससे सार्फिन की परेशानी में इजाफा हो गया है। LPG की कीमत में हालिया इजाफे पर होटल और रिक्शा मालिकान ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इस इकदाम से गुर्बत की चक्की में पिसने वाले आवाम के मसाइल में मजीद इजाफा होगा। सार्फिन ने CNG की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। सिटी 42 में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला अभी जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए सिटी 42। मॉडल टाउन कचहरी के वकला ने रिश्वत लेने के बावजूद मौक्कल को बेगुनाह करार न देने पर थाना काहना के तफ्तीशी ऑफिसर अलीम रजा को पीट डाला। एडवोकेट हसामुद्दीन की दरख्वास्त पर अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर के खिलाफ रिश्वत सतानी का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म भी जारी कर दिया। थाना काहना के तफ्तीशी अफसर अलीम रजा ने हसामुद्दीन एडवोकेट के मुवक्किल शब्बीर हुसैन को बोगस चेक केस में रिमांड के लिए मॉडल टाउन कचहरी में पेश किया। अहाता अदालत में तफ्तीशी अफसर और वकला में 20,000 रुपए रिश्वत लेने के बावजूद मुवक्किल को बेगुनाह करार न देने पर बहस हो गई।
बहस से मुश्तइल होकर वकला ने अलीम रजा को तशद्दुद का निशाना बना डाला। इसी दौरान हसामुद्दीन एडवोकेट ने मॉडल टाउन के सीनियर जज जफर इकबाल सयाल की अदालत में अलीम रजा के खिलाफ रिश्वत सतानी और वकला को खतरनाक नताइज की धमकियां देने पर मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त कर दी, जिस पर कार्रवाई करते हुए जज जफर इकबाल सयालवी ने थाना नसीराबाद के SHO को मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। 20,000 रुपये जो है उसने रिश्वत ली है मेरे मौकल शबीर हुसैन से, और न सिर्फ रिश्वत ली है बल्कि उसके बाद वो यहाँ कोर्ट में आके उसे ये जब मैं एज ए कौंसल उसमें अपेयर होने के लिए कोर्ट की तरफ आया हूँ तो वो ये कहता है उसे कि ये वकील आपने क्यों किया है, मैंने तो आपको इसी में से 500 रुपये में वकील करवा देना था, ये जो आपने मुझे पैसे दिए हैं तो वो मैंने आपका मामला ये सारा हल करा देना था। नसीराबाद पुलिस ने मॉडल टाउन कचहरी में काहना इन्वेस्टिगेशन पुलिस के ASI नईम रजा पर तशद्दुद करने, वायरलेस सेट छीनने और सरकारी उमूर में मुदाखलत करने पर हसामुद्दीन एडवोकेट और उनके 7 साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। SP मॉडल टाउन तारिक अजीज के मुताबिक काहना इन्वेस्टिगेशन का ASI नईम रजा एक मुल्जिम के रिमांड के हुसूल के लिए अदालत में पेशी के लिए आया, जहां मुल्जिम के वकील हसामुद्दीन ने उसे कहा कि वो जिस्मानी रिमांड के बजाय जुडिशल रिमांड मांगे, जिस पर ASI ने कहा कि वो जिस्मानी ही रिमांड मांगेगा। उस पर हसामुद्दीन और उसके साथी आसिफ भट्टी, इशफाक और 4-5 नामालूम लोगों ने नईम रजा को तशद्दुद का निशाना बनाया और वायरलेस सेट छीन लिया। इस दौरान ASI की वर्दी भी फट गई। इस वाक़े की FIR दर्ज कर ली गई है। निगरान हुकूमत पंजाब ने होम सेक्रेटरी शाहिद खान को चीफ सेक्रेटरी और खान बेग को IG पुलिस का आर्जी चार्ज देने का नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक महकमा सर्विसेज ने एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच खान बेग को फौरी तौर पर IG पुलिस का आर्जी तौर पर चार्ज दे दिया है और DMG के 8वें कॉमन से ताल्लुक़ रखने वाले होम सेक्रेटरी शाहिद खान को फौरी तौर पर चीफ सेक्रेटरी तैनात कर दिया है। सराय के मुताबिक जब तक नए IG पुलिस और चीफ सेक्रेटरी का नोटिफिकेशन जारी नहीं होता तब तक मज़कूरा अफसरान आर्जी तौर पर काम करेंगे। इससे कबल आफ्ताब सुल्तान और जावेद इकबाल बतौर IG पुलिस और चीफ सेक्रेटरी का चार्ज छोड़ चुके हैं। मुस्लिम लीग नून ने जावेद असलम को चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात करने की सिफारिश की है, लेकिन वफाकी हुकूमत ने ताहाल उनकी तकर्री का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। शाहिद खान से इस वक्त 2 अफसर सीनियर हैं। नदीम अशरफ और सुहेल अहमद ग्रेड 22 के DMG ऑफिसर्स हैं, लेकिन अब ये दोनों शाहिद खान के मातहत काम करेंगे। CCPO मेहर खालिद दादलक ने अपने ओहदे का चार्ज छोड़ दिया, जबकि उनकी अदम मौजूदगी में DIG इन्वेस्टिगेशन जुल्फ़िकार हमीद ने CCPO का इजाफी चार्ज संभाल कर काम शुरू कर दिया है। हुकूमत ने CCPO लाहौर खालिद दादलक की 90 रोज़ की तवील रुख्सत मंजूर करते हुए उनको इख्तियार दिया था कि वो जब चाहें इन छुट्टियों पर चले जाएं। मेहर खालिद दादलक आज से 90 दिन की रुख्सत पर रवाना हो गए हैं। हुकूमत पंजाब ने CCPO की रुख्सत के दौरान उनके ओहदे का इजाफी चार्ज DIG इन्वेस्टिगेशन को देने का नोटिफिकेशन किया था। जुल्फ़िकार हमीद ने CCPO को ओहदे का चार्ज संभाल कर काम शुरू कर दिया है। हालिया इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की कामयाबी के बाद पार्टी में अरकान असम्बली की शमूलियत और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को मुबारकबाद देने वालों की मुलाकातों का सिलसिला जारी है। मजीद जानते हैं अली अकबर की इस रिपोर्ट। साबिक वज़ीर आज़म मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली ने मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से जाती उम्रा में इनकी राइशगाह पर मुलाकात की और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून की कामयाबी पर मुबारकबाद भी दी। मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली के हमरा लीगी रहनमा चौधरी शबाज बाबर, यया मुनव्वर और मोहम्मद अकरम चौधरी भी थे। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली का कहना था कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून में गैर मशरूत तौर पर शामिल होने का फैसला किया है। मुल्क के मफाद में कोई शर्त नहीं रखी जाती। उन्होंने कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बलोचिस्तान में हुकूमत साजी और मसाइल के हल के हवाले से तजवीज़ भी दी है। सारा मुल्क मसाइल से घिरा हुआ है। यहाँ पर एक मसला नहीं है, कई मसाइल हैं। सबसे पहले तो बिजली का प्रॉब्लम है, बहरहाल बाकी चीज़ें हैं, छोटे बिजली का एक नाम पड़ गया है, बहुत मसले हैं। कतर के शाही खानदान और ईरान के सफीर अली रजा ने भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात की और इन्हें नून लीग की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। कैमरामैन आतिफ यासीन के हमरा अली अकबर, सिटी 42। ऐवानी सनत और तिजारत में अफ्रीकी ममालिक की सकाफत की अक्कासी करती अशिया की एक रोज़ा नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसने मुल्क भर की सनती बिरादरी को अपनी जानिब मुतवज्जो कर लिया। अफ्रीकी लिबास ज़ेब तन किए अफ्रीकन सिन्फ़ नाजुक नुमाइश में मरकज़ निगाह बनी रही। निगरान वज़ीर आला नजम सेठी ने भी नुमाइश का दौरा किया। नुमाइश का मजीद अहवाल जानते हैं शहजाद खान अब्दाली की इस रिपोर्ट में।
ایوان سنتو تجارت میں الجیریا، مصر، کینیا، نائجیریا، مراکش، ساؤتھ افریقہ، لیبیا، سوڈان، موریش اور ٹیسونیا کی جیولری، بیش قیمت قالین، ہینڈی کرافٹ، گارمنٹس اور دانتوں سمیت دیگر اشیاء کو نمائش کے لیے پیش کیا گیا۔ نمائش دیکھنے کے لیے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نجم سیٹھی، صنعت اور دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی کثیر تعداد نے لاہور چیمبر کا رخ کیا۔ لاہور چیمبر کے صدر فاروق افتخار، سینئر نائب صدر عرفان اقبال شیخ، میاں ابو ذر شاد، طاہر ملک، ہائی کمشنر کینیا اور افریقی وفد کی سربراہ میسی ماشی بھی وزیر اعلیٰ کے ہمراہ تھیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے نجم سیٹھی نے کہا کہ افریقی ممالک پاکستانی مصنوعات کے لیے وسیع مارکیٹ کا درجہ رکھتے ہیں اور پاکستانی مصنوعات کو ان منڈیوں میں متعارف کرانے کی ضرورت ہے۔ ہماری ایکسپورٹ ڈائیورسفیکیشن نہیں ہوئی، حالانکہ گورنمنٹس نے بہت سے ادارے بھی بنائے ہیں اور ہمیں اس کی طرف توجہ دینی چاہیے، مگر سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہمارے تجارت کے جو لیڈرز ہیں، ہماری جو حکومتیں آتی ہیں اور جو بیوروکریٹس ہیں، وہ ان کو اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ کاروباری برادری نے سٹی 42 سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایسی نمائشیں مصنوعات کو متعارف کرانے کے ساتھ ساتھ تجارتی حجم میں بھی اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ افریقہ کی مارکیٹ کو اوپن کرنے کا ہم نے لاہور چیمبر نے بزنس کمیونٹی کے لیے کیا ایفرٹس کی ہے، اس سے بہترین نتائج حاصل ہو سکتے ہیں، ہماری ایکسپورٹ بہتر ہو سکتی ہے، ہمارے لوگوں کی وہاں پہ مینس پاور ڈیولپ ہو سکتی ہے۔ یورپ ہم سے مال لیتا ہے، چائنا سے مال لیتا ہے، تو پھر ان کو وہاں پہ جا کے سپلائی کرتا ہے افریقنز کو، تو ہم کیوں نہیں ان کو ڈائریکٹ کر سکتے؟ ہمارا ان کے ساتھ ریلیشن شپ اب بہت بن گیا ہے۔ افریقی ممالک کے سٹار ہولڈرز نے سٹی 42 سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صنعتی مصنوعات کی نمائش معاشی روابط مستحکم بنانے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ Inshallah that these two countries, Pakistan and Nigeria, inshallah we will make their own business as export and import as well. We see whatever is going on here. This is African culture, so we believe that Africa and Pakistan is going to do something good in the future. جو پاکستان اور نائجیریا کی فرینڈشپ ہے، آئی تھنک کہ یہ لوگ واسط جائیں گے۔ ایوان سطح تجارت نے ملکی مصنوعات کو وسیع منڈی مہیا کرنے کی غرض سے 11 افریقی ممالک کو ایک چھت تلے جمع کیا، مگر فارن آفس نے روایتی بے حسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس میں شمولیت اختیار کرنا بھی گوارا نہ کی۔ کیمرامین رضوان علی کے ہمراہ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ سٹی 42 میں خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ ابھی جاری ہے، لیکن یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، دیکھتے رہیے سٹی 42۔ نگران وزیر اعلیٰ نجم سیٹھی نے کہا ہے کہ صحت عامہ کی سہولیات کی عام آدمی تک فراہمی حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ نجم سیٹھی نے یونیورسٹی آف لاہور زائبین روڈ پر دوسری سالانہ ہیلتھ کانفرنس کے افتتاحی سیشن میں شرکت کی۔ کانفرنس میں صوبائی سیکریٹری اطلاعات امجد حسین، سینئر پروفیسرز، ڈاکٹرز، فارماسسٹ، ماہرین اور طلباء و طالبات کی بڑی تعداد موجود تھی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نجم سیٹھی کا کہنا تھا کہ ہیلتھ کانفرنس کا انعقاد خوشائند ہے، طبی سہولیات بہتر بنا کر عوام کو معیاری علاج معالجہ فراہم کیا جا سکتا ہے۔ نجم سیٹھی نے کہا کہ مغربی ممالک میں ہیلتھ انشورنس کے ذریعے مریضوں کو تحفظ فراہم کیا جاتا ہے، پاکستان میں بھی ہیلتھ انشورنس پر کام ہونا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ خواتین ملک کی آبادی کا نصف حصہ ہیں، ان کے فعال کردار کے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے کہ تمام پارلیمانی عہدوں پر اپنے امیدوار کھڑے کرے گی۔ عمران خان کو پارلیمانی لیڈر، جاوید ہاشمی قائد ایوان، عارف الوی چیف وپ، غلام سرور خان بزنس ایڈوائزر کمیٹی، شہریار آفریدی اسپیکر اور منزہ حسن کو بطور ڈیپٹی اسپیکر نامزد کیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی زیر صدارت زمان پاک میں ہوا، جس میں ملک بھر سے حالیہ انتخابات میں نومنتخب اراکین قومی اسمبلی نے شرکت کی۔ اجلاس کے بعد میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے بتایا کہ تمام پارلیمانی عہدوں پر تحریک انصاف اپنے امیدوار کھڑے کرے گی اور ان کی جماعت مؤثر اور ذمہ دار اپوزیشن کا کردار ادا کرے گی۔ شاہ محمود قریشی کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف پنڈورا باکس کھولنا نہیں چاہتی، نہ ہی کسی کا مینڈیٹ خراب کرنا چاہتی ہے، لیکن جہاں دھاندلی کے انکشافات کیے گئے ہیں وہاں انصاف ضرور دلایا جائے، الیکشن ٹرائبونل کی تعداد بڑھائی جائے، الیکشن کمیشن سے گزارش ہے کہ وہ مسائل کا حل تلاش کرے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ووٹنگ کے لحاظ سے تحریک انصاف دوسری بڑی جماعت بن کر ابھری ہے، لہٰذا وہ بھرپور اپوزیشن کا کردار ادا کرے گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان اپنی طبیعت کے باعث 28 مئی کو ہونے والے اسمبلی کے اجلاس میں شرکت نہیں کر پائیں گے۔ مسلم لیگ کاف نے مطالبہ کیا ہے کہ حالیہ انتخابات پر تمام سیاسی جماعتوں کے تحفظات کے پیش نظر شکایات کی تحقیقات اور ان کے ازالے کے لیے قومی کمیشن قائم کیا جائے جو 30 دن میں اپنا کام مکمل کرے۔ مسلم لیگ کاف کے صدر سینیٹر چودھری شجاعت حسین کی زیر صدارت اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد ہوا۔
जिसमें काफ लीग के चारों सूबों और गिलगित बल्तिस्तान के कायदीन, टिकट होल्डर्स और मुंतखब अरकान असम्बली ने शिरकत की। इजलास में चौधरी परवेज इलाही, सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद, सेनेटर कामिल अली आगा, एसएम जफर, खालिद रांझा और दीगर कायदीन ने खिताब किया। इजलास में मुतफ़िका तौर पर फैसला किया गया कि मुस्लिम लीग काफ मरकज और चारों सूबों में पीपल्स पार्टी के बगैर जानदार और फाल अपोजिशन का किरदार अदा करेगी। इजलास में कहा गया कि वक्त का तकाजा है कि पोलिंग और गिनती में धांधलियों, बेकायदगियों और दीगर संगीन शिकायत के अजाले के लिए मुनासिब रास्ता कौमी कमीशन का क़याम है, जो जहां ज़रूरी समझे रीकाउंटिंग, रीपोलिंग और नादरा से फिंगरप्रिंट्स की चेकिंग का हुक्म दे। सेनेटर चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि वो अवाम और पाकिस्तान की खिदमत जारी रखेंगे। चौधरी परवेज इलाही ने अपने खिताब में कहा कि मुस्लिम लीग काफ हर सतह पर मौसर और फाल किरदार अदा करती रहेगी। उन्होंने कहा कि अनवर अली चीमा, गयास मेला जैसे अरकान असम्बली जो कभी नहीं हारे, इन अरकान की फतह भी उनसे छीनी गई है। नौमुंतखब रुकन सूबाई असम्बली बाऊ अख्तर अली ने कहा है कि सहर रोड और शेर शाह रोड की तामीर उनकी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। बागीची सेठावाली बागबानपुरा में लीगी कारकुनान से मीटिंग करते हुए बाऊ अख्तर अली का कहना था कि PP 144 में तरक्याती काम तेजी से मुकम्मल कराए गए हैं, जबकि सहर रोड, बागबानपुरा और शेर शाह रोड की तामीर का काम भी जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। मीटिंग में अलाउद्दीन राना, जमील अहमद, शब्बीर खान और मलिक सुल्तान समेत दीगर कारकुनान ने शिरकत की। बरतानवी फ़ज़ाइया और तहकीकाती एजेंसियों की जानिब से धमाका खेज मवाद की इतला मिलने के बाद मानचेस्टर एयरपोर्ट पर रोकी जाने वाली PIA की परवाज़ PK 710 13 घंटे की ताख़ीर से लाहौर पहुंची। मुसाफिरों और उनके अहल खाना ने PIA के खिलाफ शिकायत के अखबार लगा दिए। PIA की मानचेस्टर से आने वाली परवाज़ PK 710 हफ्ते की सुबह 5:30 के बजाय 13 घंटे की ताख़ीर से शाम 6:30 पर लाहौर पहुंची। एयरपोर्ट से बाहर आने वाले मुसाफिरों ने बताया कि उन्हें एयरपोर्ट पहुंचने से पहले ही बरतानवी मीडिया के जरिए मालूम हो चुका था कि जहाज़ में कोई मसला है, ताहम वो मामूल के मुताबिक एयरपोर्ट पहुंचे, लेकिन PIA इंतजामिया ने उन्हें कोई सहूलत फराहम नहीं की और न ही उनको रिहाइश के लिए होटल फराहम किया। मिनहाजुल कुरान सेक्रेटेरिएट में पाकिस्तान अवामी तहरीक के 24वें यौम तासीस के मौके पर तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान अवामी तहरीक फेडरल काउंसिल के सदर डॉक्टर हुसैन मोहिजुद्दीन ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। मॉडल टाउन में मुनाकिदा तकरीब में चेयरमैन शिया कम्युनिटी सैयद नौबहार शाह, मारूफ एंकर पर्सन हबीब अकरम, डॉक्टर रहीक अब्बासी, ब्रिगेडियर फारूक हमीद, मुनीर हुसैन गिलानी और कर्नल ZI फारूक समेत पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने बदलेगा निज़ाम तब बदलेगा पाकिस्तान के उन्वान पर अपने ख्यालात का इजहार किया। मुस्लिम लीग नून के नौमुंतखब रुकन पंजाब असम्बली और कौमी क्रिकेट टीम के साबिक मैनेजर मियां मुनीर ने PCB जनरल काउंसिल मीटिंग को गैर कानूनी करार दे दिया है। मियां मुनीर ने गुलबर्ग में LRCA के सदर ख्वाजा नदीम से मुलाकात की और 29 मई को कराची बुलाए गए PCB जनरल काउंसिल इजलास को गैर कानूनी करार देते हुए मुश्तरका हिकमत अमली के हवाले से तबादला ख्याल किया। मियां मुनीर का कहना था कि PCB का नया आइन जमहूरी नहीं है, क्रिकेट के मामलात को जमहूरी अंदाज से चलाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पार्टी बनकर रह गया है, जिसे अवाम भी मुस्तरद कर चुके हैं। खेल के मैदान में कौन जीता और किसने खाई मात, ये जानेंगे सिटी स्पोर्ट्स में। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में 45वें मेंस जिम्नास्टिक चैंपियनशिप का आगाज हो गया है। चैंपियनशिप के हवाले से मजीद बता रहे हैं आमिर रजा खान अपनी इस रिपोर्ट में। दो रोजा चैंपियनशिप में पंजाब, सिंध, KPK, बलोचिस्तान, वापडा, आर्मी, पुलिस और हायर एजुकेशन की टीमें हिस्सा ले रही हैं। चैंपियनशिप का इफ्तिताह गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर खलीकुर रहमान ने किया। चैंपियनशिप में आज 3 इवेंट्स हुए, जिनमें फ्लोर एक्सरसाइज और हॉर्स जंपिंग के मुकाबले शामिल हैं। खिलाड़ियों का कहना है कि उन्हें सहूलियात की कमी का सामना है। अगर इसी तरह फैसिलिटीज हमको दी जाए तो इंशाल्लाह हम इस बंदों को क्रॉस कर सकते हैं। इंशाल्लाह जैसे भी हैं, अगर हमें चांस दिया जाए, ज़्यादा मौका मिले मुकाबलों में, तो इंशाल्लाह हम इंटरनेशनल भी जा सकते हैं। इट इज़ वेरी गुड। यहाँ पे आर्मी, वापटा बहुत अच्छी टीमें आई हैं, लेकिन फैसिलिटीज़ की अगर बात की जाए तो वैसी नहीं है जैसी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। चैंपियनशिप के मेजबान गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स हेड डॉक्टर इकराम का कहना है कि सहूलियात को मजीद बेहतर बनाया जाएगा, जबकि ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी खातम अली खान के मुताबिक खेलों से अमन को फरोग देने में मदद हासिल होगी। 99% जो जिम्नास्ट हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज ने प्रोड्यूस किए हैं और आज भी आप देखें कुछ 6-7 टीमें यहाँ से आई हैं, KP से भी आई हैं, सिंध से भी है, पाकिस्तान से, पंजाब से, लाहौर से भी है और ये अच्छा खासा यहाँ पे एक मुकाबला हो रहा है इनमें। अगर हमने पाकिस्तान के इमेज को ठीक करना है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को प्रमोट करें
दुनिया जो है पाकिस्तान को इस तरफ देखना चाहती है और ये हमारे सूबे भाईचारा हो, हम लोगों में भाईचारा हो। स्पोर्ट्स ही एक बेहतरीन रेमेडी है जो इन बुराइयों के खिलाफ जिहाद कर सकती है। जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में शरीक खिलाड़ी भरपूर सलाहियतों के मालिक हैं और एक दूसरे से सबकत ले जाने के लिए हर कोई सख्त मेहनत कर रहा है। 47वीं नेशनल मेंस जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में रेलवे, वापडा और आर्मी की टीमों का मैच सख्त मुकाबला देखने में आएगा। कैमरामैन जाहिद शफी के साथ आमिर रजा खान, सिटी 42। सिटी 42 में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला अभी जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए सिटी 42। तालीमी सरगर्मियों का अहवाल आप जान सकेंगे सिटी तालीम में। City Taaleem is brought to you by Punjab Group of Colleges, the largest higher education network in Pakistan. हायर एजुकेशन कमीशन के साबिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर सुहेल नकवी को लम्स का नया वाइस चांसलर मुकर्रर कर दिया गया है। डॉक्टर सुहेल 1 जुलाई को अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के वाइस चांसलर डॉक्टर आदिल नजम ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। डॉक्टर आदिल नजम 2011 से अपने फराइज सर अंजाम दे रहे थे। उनके इस्तीफे के बाद लम्स ने नए वाइस चांसलर के लिए डॉक्टर सुहेल नकवी का चुनाव कर लिया है। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में एलाइड हेल्थ साइंसेज डिपार्टमेंट का इफ्तिताह कर दिया गया है। इफ्तिताही तकरीब में कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर महमूद शौकत ने बतौर मेहमानी खुसूसी शिरकत की, जबकि एलाइड हेल्थ डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल डॉक्टर सुहेल सफ्तर, वाइस प्रिंसिपल फाइजा हसनैन, मैक्स ऑफिशियल सर्जन डॉक्टर मोहम्मद गुलरेज समेत डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और तालिब इल्मों की कसीर तादाद में मौजूद थी। इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पंजाब यूनिवर्सिटी में सालाना करियर मेले का एहतमाम किया गया। मेले में 35 कंपनियों ने मुलाजमत के मौके फराहम करने के लिए अपने स्टॉल्स लगाए। तफसीलात देखते हैं अकमल सोमरू की इस रिपोर्ट। IBIT पंजाब यूनिवर्सिटी के ज़ेरे एहतमाम मुनक्किद होने वाले कैरियर मेले में आमिर सरवर, मंसूर महमूद आशिक, सलीम रजा, शुमाइला गुल और फहद काजमी समेत दीगर असातिज़ा और तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैरियर मेले में 35 कौमी और बैनुल अक़वामी IT, बिजनेस और मार्केटिंग कंपनियों ने स्टॉल्स लगाए। मेले में सैकड़ों तलबा और तालिबात के इंटरव्यूज भी किए गए। इदारे के तलबा का कहना है कि उनकी डिग्रियां मुकम्मल होने वाली हैं और ये खुशआइंद है कि मयारी कंपनियों के नुमाइंदों के जरिए उन्हें अहम मालूमात मिली हैं। हम लोग जॉब फेयर इसलिए कर रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को एक चैनल मिल सके जिसके थ्रू वो मार्केट में अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा सके। क्या क्या कंपनीज की डिमांड्स है वो फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं। इसके अलावा पहले इंटर्नशिप्स के लिए स्टूडेंट्स को खुद जानी पड़ता था, सीवीज ड्रॉप करनी पड़ती थी। यहाँ पे कंपनीज खुद हमारे पास आई हैं, सीवीज ले रही हैं और इंटरव्यूज दे रहे हैं। तलबा का कहना है कि कैरियर मेले के जरिए इंटर्नशिप के मौके भी मुयसर आएंगे जो उनके लिए मुस्तकबिल में मददगार साबित होंगे। स्टूडेंट्स को एक मौका मिलता है इसका दे कैन बेसिकली कैटर डिफरेंट कंपनीज और वहाँ जाके वो लोग अपनी सीवीज ड्रॉप कर रहे हैं। सम कंपनीज आर टेकिंग इंटरव्यूज। आई थिंक इट्स प्रोवाइडिंग अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी सो दैट स्टूडेंट्स कैन जस्ट बुनियादी हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे बच्चे जब डिग्री लेके बाहर जाएं तो बेस्ट कंपनीज के अंदर इनको जॉब मिले और ये जो रोजगार के बेहतरीन मौके हैं इनको मैसर आएँ। यहाँ पे हम लोगों को एक चैनल प्रोवाइड किया गया है ताकि मार्केट में हम स्टूडेंट्स की थोड़ा हेल्प आउट हो जाए। डिग्री मुकम्मल होने के बाद मुलाजमत का हुसूल मुश्किल मरहला होता है। कैरियर मेले में तलबा को मुलाजमत के साथ साथ बेहतर मुस्तकबिल के चुनाव में मदद फराहम करते हैं। कैमरामैन नुमान अली के साथ अकमल सोमरो, सिटी 42। शहर में जराइम की क्या सूरत हाल रही आप जान सकेंगे सिटी क्राइम में। उर्दू बाजार में चोर रंगे हाथों गिरफ्तार, न्यू अनारकली पुलिस के हवाले कर दिया गया। मुलजिम ने मुतअद्दिद वारदातों का एतराफ कर लिया है। उर्दू बाजार में गुज़िश्ता चंद माह के दौरान चोरी की दर्जनों वारदातें हो चुकी हैं। हफ्ते के रोज दुकानदारों ने छत से दुकान के अंदर दाखिल होने वाले एक शख्स फहद अहमद को रंगे हाथों धर लिया। मुलजिम को सदर अंजुमन ताजरान उर्दू बाजार खालिद परवेज के दफ्तर लाया गया, जहां उसने पुलिस को बताया कि उसके साथ उर्दू बाजार का मुलाजिम अकरम, चाबियां बनाने वाले नासिर और नईम शामिल है जो दुकानों के ताले तोड़कर सामान चोरी करते थे। शहर की अदालती कार्रवाइयों पर एक नजर सिटी अदालत में। स्पेशल जज एंटी करप्शन गफ्फार जलील ने जालसाजी केस में महकमा इरिगेशन के एक्सियन मोहम्मद अफजल, सब इंजीनियर खालिद इकबाल और SCO नवाजिश अली की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी है। एंटी करप्शन ने मोहम्मद अफजल, खालिद इकबाल और नवाजिश अली के खिलाफ जनाह बैराज में पत्थर डालने की आड़ में 83 लाख रुपए खुर्द-बुर्द करने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया था।
मुकदमा दर्ज होने पर तीनों मुल्जिमान ने अपनी दरखास्त जमानत दायर की, जिस पर इंस्पेक्टर नाजिया हुसैन संधू ने अदालत में रिकॉर्ड पेश किया, जिस पर अदालत ने रिकॉर्ड की पड़ताल के बाद तीनों मुल्जिमान की दरखास्तें जमानतें खारिज कर दी हैं। पंजाब बार काउंसिल ने बजट और जुडिशल कमीशन के मेंबर की नामजदगी के लिए 5 जून को जनरल हाउस का इजलास तलब कर लिया है। पंजाब बार काउंसिल ने 5 जून को जनरल हाउस का इजलास तलब कर लिया है। 5 जून को होने वाले जनरल हाउस इजलास में सूबे भर से ताल्लुक रखने वाले पंजाब बार के 75 अरकान की शिरकत मुतवक्को है। इजलास में 2013 के बजट की मंजूरी और जुडिशल कमीशन के मेंबर की नामजदगी के बारे में फैसला किया जाएगा। इस सिलसिले में पीर से तमाम मेंबरान को मुत्तला करने के लिए बाकायदा मरासले जारी करने का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। हाई कोर्ट ने बैरून मुल्क का झांसा देकर लाखों का फ्रॉड करने वाले फ्यूचर कंसर्न के मालिक आसिम मलिक के खिलाफ दायर दरखास्तों की समाअत के लिए 29 मई की तारीख मुकर्रर कर दी है। लाहौर हाई कोर्ट में फ्यूचर कंसर्न के मालिक आसिम मलिक के खिलाफ 153 दरख्वास्तें दायर हैं। इन दरख्वास्तों में मुवक्कफ इख्तियार किया गया है कि फ्यूचर कंसर्न के मालिक आसिम मलिक ने बैरून मुल्क का झांसा देकर उनसे लाखों रुपए बटोर लिए। उन्हें ना तो बैरून मुल्क भिजवाया गया और ना ही उनकी रकम की वापसी की गई। FIA को दरख्वास्तें देने के बावजूद आसिम मलिक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। लाहौर हाई कोर्ट पे नोबल रिसोर्स कंपनी सिंगापुर ने एग्रो स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड के खिलाफ $18,88,192 की वसूली के लिए दावा दायर कर दिया है। अदालत आलिया में नोबल रिसोर्स कंपनी सिंगापुर ने अपने वकील बैरिस्टर तारिक सईद की वसातत से एग्रो स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड के खिलाफ दावा दायर करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नोबल रिसोर्स कंपनी ने 2011 में एग्रो स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड को एक मुआहिदे के तहत 1050 मेट्रिक टन ब्राज़िल के खाम कॉटन फरोख्त की, लेकिन एग्रो स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स मालकान ने बैंक में LC खुलवाने में जानबूझकर ताख़ीर की और अभी तक $18,88,192 की अदायगी नहीं की। खराब UPS देने और वारंटी के बावजूद तब्दील न करने पर सारिफ अदालत ने अकरम UPS मुस्लिम टाउन के मालिक को तलब कर लिया है। सारिफ अदालत में वहदत कॉलोनी के रिहायशी परवेज अहमद ने अकरम UPS मुस्लिम टाउन के मालिक के खिलाफ 1 लाख रुपए हर्जाने का दावा दायर किया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि उन्होंने अपने घर के लिए UPS खरीदा, जिसकी वारंटी भी दी गई। घर लाकर चेक करने पर पता लगा कि UPS खराब है। फौरी तौर पर दुकानदार से राब्ता किया गया तो उसने भी तब्दील करने से इनकार कर दिया। अदालत ने दावे पर दुकानदार को 7 जून के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। शहर के कारोबारी उतार चढ़ाव पर एक नजर डालेंगे सिटी बिजनेस में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ट्रेडर्स विंग लाहौर का इजलास सदर बाबर महमूद की ज़ेर सदारत हाल रोड पर मुनाकिद हुआ, जिसमें ताजरों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। बाबर महमूद का कहना था कि ताजिर बिरादरी की मुस्लिम लीग नून से बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता हैं। हाल रोड पर मुनक्किदा इजलास में शहजाद चौहान, नोमी भट्ट, असलम भट्ट, सरदार खान, हाफिज नौमान, शेख आबिद, मियाँ शफ़क़त और कैसर महमूद समेत दीगर ताजरों ने शिरकत की। ताजरों से गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून ट्रेडर्स विंग लाहौर के सदर बाबर महमूद ने कहा कि गुज़िश्ता 5 साल के दौरान एनर्जी बहरान और पे दर पे टैक्सों के बायस ताजिर बिरादरी में तशवीश पाई जाती है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात 2013 में मुस्लिम लीग नून की कामयाबी से ताजरों में खुशी पाई जाती है, क्योंकि मुस्लिम लीग की क़यादत कारोबारी बिरादरी के मसाइल से बखूबी वाकिफ़ है। सिटी 42 के न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट city42.tv। जानते रहिए शहर की सब बातें।